Assalamu alaikum, my dear students. Last class में हमने पढ़ा था the matter around us can be classified broadly into two categories. Number one category हमने बोला था pure substance and number second category as mixtures. तो आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं. We will today discuss the types of pure substance. Types of pure substance. You can take your pen and your notebook, pen and paper to write down today's class. Types of pure substance. ये जो pure substance हमारे पास परसों हमने इसको define किया था. Pure substance is one that has only one kind of particles. Yeah, that's made up of only one kind of constituents. These pure substance are broadly divided into two categories. Number one, elements, and number second, compounds. तो पहले लिखेंगे what is an element. उसके बाद हम देखेंगे compound क्या चीज़ है. तो you may note down first thing. Element is a substance. Element is a substance that are made of only one kind of atoms. कोई भी substance दुनिया में जिसमें सिर्फ एक ही तरह के atoms होंगे, उस substance को हम element कहते हैं. I repeat it. Element is any substance that is made up of only one kind of atoms. Hope you understand that. Now, आगे बढ़ते हैं. अब ये जो atoms हैं एक element के, these atoms can be present either as single atoms. यानी एक element जिसको हमने अभी पढ़ा, इसमें सिर्फ एक ही तरह के atoms होते हैं. अब ये जो atoms हैं, these atoms can exist in two different ways. Elements में atoms जो हैं, these can exist in two different ways, two ways. तो एक कौन सा तरीका है? Single atoms. These atoms can be present as single atoms, और फिर ये single atom एक दूसरे के साथ जुड़े होंगे by some bonds. इसी तरह से these atoms can be present in one more way, या जिसको हम कहते हैं molecule. यानी एक element में जो atoms हैं, these can either exist as single atoms or these can exist as molecules. Let's try to understand it. Take the example of copper or sodium or potassium or most of the metals and noble gases. उनमें हम हमेशा ये देखते हैं इन एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं, these exist as single atoms. ये किसी दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बना के या मॉलिक्यूल नहीं बनाते हैं. These are joined together by some chemical forces. ये देखिए, हमें यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है. Piece of copper, it's made up of these copper atoms, and these are single copper atoms. These single copper atoms are the constituents of piece of copper. इसी तरह से these are constituents of sodium, these are constituents of potassium. लेकिन हमारे पास कुछ elements इस तरह के होते हैं where the atoms first combine to form molecules. Take the example of chlorine gas. क्लोरीन गैस का एक एटम दूसरे एटम के साथ मिलकर क्या बनाता है? यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल Cl2. इसी तरह यही सूरत हाल ऑक्सीजन के साथ है, यही हाइड्रोजन के साथ है. फिर ये Cl2 जो है, दिस फॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्लोरीन गैस. याद रखिए, कॉपर में सिंपली Cu, इट फॉर्म्स द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉपर एलिमेंट. लेकिन क्लोरीन गैस में Cl जो है, दिस नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट. व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट? Cl2 मॉलिक्यूल. तो यही मेरा मतलब है कि एलिमेंट्स जो होते हैं, इनमें एटम्स दो तरीकों से रह सकते हैं, या तो एज सिंगल एटम या फिर एज मॉलिक्यूल्स. यूजुअली आप देखेंगे सिंगल एटम्स कहाँ पे मौजूद होते हैं? एक तो आप मेटल्स में देखेंगे M, इसी तरह से आप N नोबल गैस में. ये याद रखिए, M and N. मोस्ट ऑफ द मेटल्स एंड मोस्ट ऑफ द नोबल या ऑल द नोबल गैसेस, वहाँ पे जो उन एलिमेंट्स में जो एटम्स हैं, दीज एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स. और बाकी जो नॉन मेटल्स है नोबल गैस को छोड़ के, उनमें आप देखेंगे जो एटम्स है, दीज आर प्रेजेंट एज मॉलिक्यूल्स. यू मे बी नोइंग इट दैट इन फास्फोरस में क्या होता है? 4 फास्फोरस एटम्स मिल के बनाते हैं एक फास्फोरस मॉलिक्यूल. तो फिर ये 4 फास्फोरस के मॉलिक्यूल्स जो हैं, दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोरस. एंड एलिमेंट ऑफ फास्फोरस जो है, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स P4 है.
इसके constituents P4 है, not P1, P2. इसके constituents P4 molecules होते हैं. I hope you understand it. कि एलिमेंट्स जो हैं इनमें एटम्स, ये एटम्स के बने होते हैं, एक ही तरह के एटम्स के, लेकिन ये एटम्स दो तरीकों से हो सकते हैं, या तो सिंगल या फिर ये मॉलिक्यूल्स की हालत में हो सकते हैं. कमिंग टू द कंपाउंड्स. कंपाउंड यू विल नोट डाउन फर्स्ट हम कंपाउंड किस चीज को कहते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं अच्छी तरह से. These are the basic concepts that we have to clear, because these concepts will be repeated again and again, and most often when we are cleared these basic concepts, elements, compounds, etc., हमारा जो आगे का सफर है that will be easy. तो you note down compound क्या चीज है. compound यहाँ पे मैंने लिखा है ऊपर definition, when two or more atoms, when two or more atoms, लेकिन ये चीज important इसमें, of different elements. जब दो या दो से ज्यादा एटम्स लेकिन डिफरेंट एलिमेंट्स के कंबाइन हो जाते हैं, दे फॉर्म कंपाउंड्स. तो इसको समझने की कोशिश तरह से करते हैं. यहाँ पे आप देखते हैं एक H दूसरे H के साथ मिला और क्या बनाया है, H2. एक और दूसरे और के साथ मिला है, क्या बनाया है, O2. नाउ इन both the cases you will see the same atom is combining. Atoms of the same element. ये हाइड्रोजन का एटम, ये भी हाइड्रोजन का एटम है, ये ऑक्सीजन का एटम, ये भी ऑक्सीजन का एटम है. उन्होंने मॉलिक्यूल्स बनाए हैं, H2 मॉलिक्यूल एंड O2 मॉलिक्यूल. पहले ये बात कि मॉलिक्यूल क्या चीज है, दिस मस्ट बी क्लियर टू यू. मॉलिक्यूल you can write down, it is the stable combination of two or more than two atoms. Molecule is a stable combination of two or more atoms. Two or more atoms. Molecule एक ऐसी combination of atoms है जिसमें दो atoms या दो से ज़्यादा atoms एक दूसरे के साथ combine होते हैं and form a stable combination. फिर जो वो combination बन जाती है that is stable at room temperature, normal conditions of temperature and pressure. तो यहाँ पे आप ऐसी एक चीज देख रहे हो, दो हाइड्रोजन के एटम्स कंबाइन हुए, उन्होंने एक हाइड्रोजन एटम्स की कॉम्बिनेशन बनाई है. उस कॉम्बिनेशन में कितने हाइड्रोजन एटम्स हैं, दो. दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन. ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स. अभी जो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिनमें एटम्स आर प्रेजेंट एज मॉलिक्यूल्स. तो वही चीज यहाँ पे फिर एक बार हम पढ़ते हैं. दीज आर कॉल्ड एज मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, या सिंपली अब हम मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स आप लोगों ने कहीं देखा नहीं होगा, आपने हमेशा देखा होगा दीज आर कॉल्ड एज एलिमेंट्स. अब दूसरी जानब आ जाइए. ये कार्बन है, कार्बन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का एक एटम है. दो एटम कंबाइन हुए, लेकिन ये दो एटम जो है ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं. ये एक कार्बन का है और ये वाला एक जो है ये ऑक्सीजन का है. दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, टू एटम्स और मोर देन टू एटम्स, लेकिन एटम्स किन के होंगे, सेम एलिमेंट के नहीं बल्कि डिफरेंट एलिमेंट्स के. यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन, यहाँ पे अभी था हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं. कार्बन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, एंड इट फॉर्म्स कार्बन मोनोऑक्साइड. इसी तरह से नीचे जाइए, फिर दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम, तीन एटम्स कंबाइन हो रहे हैं, लेकिन ये तीन एटम्स एक ही एलिमेंट के नहीं है, ये दो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं. एलिमेंट कौन सा है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑक्सीजन है. देयर कॉम्बिनेशन, देयर स्टेबल कॉम्बिनेशन, दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, या सिंपली इन्हीं को हम कंपाउंड्स कहते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. कंपाउंड क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स. It is the combination of two or more atoms but of different elements. इनको कंपाउंड कहते हैं, लेकिन इनको हम कंपाउंड नहीं कहते. ये बात याद रखिए. ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल. All these four things are molecules, but these molecules are compounds. These molecules are elements. तो ये these are the molecules of elements, these are the molecules of compounds. तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या है, is the combination of two atoms or more than two atoms, but those atoms are of different elements. That is the difference. यहाँ पे same atoms है, यहाँ पे different atoms है. Hope you understand it. Any problem, any confusion, you wrote back to the WhatsApp group and we will discuss it there.
Coming to the mixtures, mixtures are also further divided into two types: homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous mixture and heterogeneous mixture, you write down. पहले देख लेते हैं homogeneous mixture क्या है. इन डिटेल हमें आगे इनको पढ़ना है मिक्सचर्स को, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन सिर्फ देते हैं कि homogeneous और heterogeneous का एक रफ आइडिया देते हैं. Homogeneous mixture एक ऐसा मिक्सचर है, the components of homogeneous mixture mix completely with each other. They mix completely with each other in such a way that the composition is uniform throughout. एक गिलास लीजिए, यहाँ पे मैंने एक गिलास लिया है, इसमें मैंने शुगर प्लस वाटर लिया है, इसको मिक्स किया है जब तक शुगर इसमें डिजॉल्व हो जाएगा. डिजॉल्व होने के बाद मैं आपसे क्या लेता हूँ कि आप कोई एक इसमें से कोई एक पार्ट यहाँ से निकालो और एक पार्ट नीचे बॉटम से निकालो, फिर इनका टेस्ट चेक करो. Both these parts will have same taste. That's what we mean. The composition as well as properties are uniform throughout. यहाँ पे जो पार्ट आपने निकाला है, अगर आप इसकी कंपोजिशन देखेंगे, इट विल बी शुगर प्लस वाटर. यहाँ पे देखेंगे उतना ही शुगर होगा, उतना ही वाटर होगा. यानी किसी भी पार्ट से भी, यानी इस मिक्सचर के कहीं से भी कोई पार्ट निकालिए, तो उन सारे पार्ट्स का जो कंपोजिशन होगा, यानी जितना शुगर और जितना वाटर एक जगह होगा, उतना ही शुगर उतना ही वाटर दूसरी जगह होगा. जितना टेस्ट ऊपर वाले पार्ट में होगा, उतना ही टेस्ट नीचे वाले पार्ट में होगा. That is what we say, that it is uniform in composition as well as properties. Solutions are the examples of homogeneous mixture. In homogeneous mixture का दूसरा नाम ही solution है. अगर solution हम देखें इसकी definition, the definition of solution is homogeneous mixture of two or more than two substances. Heterogeneous mixture लेते हैं. Heterogeneous mixture में क्या है? Composition is not uniform throughout. Composition is not uniform throughout. तो उसमें अगर आप एक पार्ट से एक हिस्सा लेते हैं, दूसरे पार्ट से एक पार्ट ऊपर से निकालेंगे, दूसरा पार्ट नीचे से निकालेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि इस पार्ट का कॉम्बिनेशन और इसका पार्ट का कॉम्बिनेशन डिफरेंट होगा. The composition will be different. The best example is you will take the mixture of sand plus iron. Sand plus Fe iron. मोस्ट ऑफ द, यानी कई जगह पे हेटेरोजेनस मिक्सचर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है वो आंख से ही दिखते हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है. कभी कभी फॉर एग्जांपल यही मिक्सचर लीजिए, सैंड प्लस आयरन, आंख से पता चलेगा डिफरेंट कंपोनेंट्स, लेकिन ऐसा सूरत होमोजेनस में नहीं था. तो हेटेरोजेनस में जहाँ कहीं मिक्सचर में आपको कंपोनेंट्स आंख से ही दिखेंगे, दैट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोजेनस मिक्सचर. लेकिन कुछ हेटेरोजेनस मिक्सचर ऐसे होते हैं जिनके कंपोनेंट्स आंख से अलग अलग नहीं दिखाई देते हैं, लेकिन वो माइक्रोस्कोप के नीचे अलग अलग दिखाई देते हैं. तो उनकी कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. उनका जो प्रॉपर्टीज है दोज आर नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट. आयरन एंड सैंड इज वन एग्जांपल. दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं मडी वाटर. मडी वाटर को 5 मिनट आप अगर आप कहीं पे स्टे करेंगे, तो 5 मिनट के बाद आप देखेंगे मड जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे जमा होगा. तो दैट मीन्स नीचे वाले पोर्शन में मड ज़्यादा होगा और ऊपर वाले पोर्शन में फिर वाटर ज़्यादा होगा. लेकिन इसके बरक्स अगर आप इस वाले शुगर प्लस वाटर का सोल्यूशन लेते हैं, आप दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन कितने भी टाइम वहाँ पे रखेंगे, तो ये जो है शुगर एंड वाटर विल नॉट सेपरेट लाइक dust or this mud or dirt is getting separated from the muddy water. Muddy water is the example of heterogeneous mixture. So sugar and water is the homogeneous mixture. तो आज के लिए इतना ही. From tomorrow onwards inshallah इस टॉपिक का जो इस चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अब आने वाले हैं, यहाँ तक हमने वो चीज़ें पढ़ी हैं जो पिछले क्लास में भी हम पढ़ते हैं फ्रॉम 8th to 10th. तो यहाँ से आप इस तरह का सिलेबस देखेंगे वायर यू फील इट्स लाइक जंप कि 10th और 11th में जो सिलेबस का जो गैप है बहुत बड़ा यहाँ से आपको दिखेगा आगे. सो यू हैव टू कंसंट्रेट ऑन योर बुक. पर्टिकुलर एनसीईआरटी बुक जो है आपके साथ साथ होनी चाहिए हमेशा व्हाइल यू आर रीडिंग. लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, मोल कंसेप्ट्स, मोल किस चीज़ को कहते हैं, एंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स एंड स्टैचियोमेट्री. 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट आगे जाएंगे इंशाल्लाह. कौन कौन से होंगे? नंबर 1 laws of chemical combination, number 2 mole concept, and number 3 is stoichiometry. You master these 3
particularly these two topics. This will form the foundation or base of your chemistry course. Thank you very much.